ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਮੇਜਰਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਈਨਾ ਲਿਫਟਸ 2-year COVID visa ban on Indians and we'll talk about all the necessary details associated with these events। हर बार ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ CEO ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਲੀਨ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਕੇਸ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਮ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਕੋਰਸ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਲੈਨਡ ਸਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਇਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਡ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਸਤਾ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਮਰਾ ਟੀਮ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਸੱਚ ਪੀਪਲ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਆਫਕੋਰਸ ਹਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਸੇਫਟੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੁਜਰਿਮ ਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਸੈਂਡ ਅ ਗੁੱਡ ਮੈਸੇਜ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲਾਇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੀਨ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰਸਟ ਆਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਗੈਂਗਸਟਰਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਅਫਕੋਰਸ ਹੈ ਕੇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਫੇਮਸ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਕ੍ਰਾਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਕੇਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਫੜ ਲਿਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਟਨ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਮੋਟਿਵ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। Is Congress really playing emotional card in getting mileage from his death? Why to blame only Congress? Every politician left, right and center has been trying to do it. Congress ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਪਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਫੀਲਿੰਗ। ਹਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਹ ਆਪ ਗਏ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ देयर ਕਾਲ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚੋਂ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਨਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਰ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਲਾਂਚ अग्निपथ स्कीम फॉर आर्म्ड फोर्सेस, व्हाट दिस स्कीम इज ऑल अबाउट? अग्निपथ स्कीम क्या है? ये आर्म्ड फोर्सेस का एक बड़ा रेडिकल आइडिया है फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। दूसरे देशों की फौजों में ये सारी चीज़ें पहले हो चुकी हुई हैं और बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज की जा चुकी हैं, हम उसके भी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे। पर मैं बेसिकली आपको बता दूं, अग्निपथ स्कीम ये है कि 17.5 से 21 साल के युवक को 4 साल के लिए वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल कॉप्स हों, चाहे वो ऑफकोर्स रूटीन मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए हों। इसका पर्पस ये है, इससे 2-3 बेनिफिट्स हैं जो एनवाइसाइज किए जा रहे हैं, जो माना जा रहा है कि ये बेनिफिट आएंगे। एक तो एवरेज एज हमारी आर्म्ड फोर्सेस की लोअर होगी, इसका मतलब हमें यंगर फिटर लोग मिलेंगे, हेल्थियर आर्मी ऑफिशियल्स मिलेंगे या सोल्जर्स मिलेंगे। दूसरा बात है टैक्स सेवी, अगर यंगस्टर्स आएंगे तो हमारी आर्मी और टैक्स सेवी होगी, उनको ट्रेन करना आसान है, ITIs डिप्लोमा से लोगों को हायर किया जा सकता है। मैं इसका एक जो मेजर बेनिफिट देख रहा हूं कि आपको एक चेन, क्योंकि 4 साल के लिए उन्होंने लोगों को हायर करना है, इट्स अ शॉर्ट सर्विस कमीशन काइंड ऑफ थिंग। उसके बाद 25% लोगों को वो रिटेन करना चाहेंगे और 75% लोग कैन गो बैक टू सिविल लाइफ। सो व्हाट यू विल गेट इज पीपल हु आर patriotic, who are disciplined, who are healthy, fitter and who have been trained with the best systems। इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और जवान जब आप वो सिविल फोर्सेस में जाते हैं, उनकी डिमांड बहुत रहती है क्योंकि उनके अंदर एक डिसिप्लिन होता है, उनके अंदर एक एथिक्स होते हैं, उनका एक वैल्यू सिस्टम होता है। एंड एनीवे वी नीड यूथ हु आर मोर पैट्रियोटिक, हु आर डिसिप्लिन्ड, हु हैव बेटर स्किल्स। तो मेरे को लगता है वो बाद में इंडस्ट्री में जाके भी काफी अच्छा कर सकते हैं। सर, जैसे आपने आर्मी के डिसिप्लिन की बात करी, और पर ऑपोजिशन का कहना है कि स्कीम से आर्मी ट्रेडिशंस और डिसिप्लिन में काफ़ी फ़र्क आएगा।
लुक, मेरे को ये लगता है कि आई डोंट एस ए प्रायोरी में इससे एग्री नहीं करता। इट्स अ चेंज। कोई भी चेंज आती है, जो भी ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं, और इसमें कई आर्मी मैन भी होंगे जिन्होंने वो ट्रेडिशन जी है, उनको लगता है कि जो हमारी ट्रेडिशन थी वो बेस्ट थी, जो सब कुछ वही था हमारे टाइम पे अच्छा था, उसके बाद तो आगे तो कुछ रहा ही नहीं, लेजेंडरी है ना। तो वो हर प्रोफेशन में यही है जी। अगर आप किसी कवि या किसी पोएट की बात कर लो, वो कहते हैं जी सारा कुछ तो हमारे टाइम पे था, आजकल तो वो बात रही नहीं। आप किसी ऑथर की बात कर लो, हर फील्ड में, आप टीचर्स की बात कर लो, हर फील्ड में लोग ये कहते हैं कि हमारे बाद तो अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब चीजें बदल रही हैं। पर बदलाव ने चीजें बेटर ही की हैं। आप देखिए, जब भी कोई लोग कहते हैं जी सोल्जर मोटिवेटेड नहीं होगा, एक आदमी, एक सोल्जर जब वो 23 साल की उम्र में परमवीर चक्र जीतता है, तो उसको आर्मी में आए 4 साल नहीं हुए होते। वो अगर शहीद होते हैं आर्मी के लिए, तो वो ये नहीं सोचते कि मेरे को 30 साल की नौकरी है तो इसलिए मैं ज़्यादा अपनी जान खतरे में डालूंगा। वहाँ पे जो उस बच्चे की ट्रेनिंग होगी, उस यूथ की ट्रेनिंग होगी, उनके अंदर जो पैट्रियोटिज्म है, जो डिसिप्लिन है, पहले दिन से डाला जाएगा। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद दे विल बी रेडी। और जब इंडियन आर्मी ने इतनी रिसर्च के बाद एक स्कीम बनाई है, आई एम श्योर उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, उसको ट्राई करना चाहिए। और एनीवे स्कीम्स कुड बी रोल्ड बैक। आप देखो तो सही, कितने, अभी नंबर क्लियर नहीं है कि कितने परसेंटेज ऑफ सोल्जर्स इस स्कीम के होंगे और कितने परसेंटेज ऑफ सोल्जर्स ट्रेडिशनल स्कीम से होंगे, जो सिपाही लेवल पे आते हैं। इन लोगों को बोला जाएगा अग्निवीर। 30,000 की स्टार्टिंग सैलरी भी दी जाएगी। तो इसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि क्या परसेंटेज है, कितने लोग रिटेन होते हैं। और देखो, जो लोग रिटेन होंगे ना, वो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉट होगा। अपने आप इंडियन आर्म फोर्सेस को स्ट्रेंथ मिलेगी। फिर उसके बाद आप इमेजिन करो, हर साल एक सेट ऑफ पीपल आएंगे जो 4 साल बाद एग्जिट करेंगे। आपकी जो आर्मी है हमेशा यंग रहेगी, हमेशा फाइटिंग फिट रहेगी। सो दैट इज एन एडिशनल एडवांटेज। और जो लोग रुकेंगे वो 16 साल और काम करके वो पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे। अब इससे एक और बेनिफिट होगा। देखिए, आज की डेट में टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी किसी भी फोर्स की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जब आप, ऑफ कोर्स सोल्जर्स तो चाहिए, हथियार तो सोल्जर ने चलाना है, और एक सुपर आर्मी बनाने के लिए यू नीड वेरी ब्राइट, यंग एंड स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स। बट एट द सेम टाइम फैक्ट ये भी है कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जब आप इस स्कीम को रोल आउट करेंगे, हमारे लिए बजट जो है, हमारे जो डिफेंस बजट्स हैं, वो कैपिटल एलोकेशन हमारी बढ़ जाएगी, हमारी टेक्नोलॉजी के लिए एलोकेशन बढ़ जाएगी, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्न भी करेंगी। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप इजराइल की बात करें, जिसको एक बहुत ही मिलिटरीली स्ट्रांग और मेंटली स्ट्रांग नेशन माना जाता है, जो दुश्मनों से घिरा हुआ है, छोटा सा देश है और अपने आप को डिफेंड करता है, वहाँ पे हर यंगस्टर्स को, चाहे वो मेन है चाहे वो वुमेन है, उनको सर्टन मिलिट्री ट्रेनिंग नेसेसरी है। उनको 2 साल मेन के लिए और 1 साल शायद वुमेन के लिए सर्व करना नेसेसिटी है। अब आप इमेजिन करो, जिस देश का हर युवक एक आर्म ट्रेनिंग लेके निकला हुआ है, उसके अंदर नेशनल फर्वर कैसा होगा, उसके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग कैसे होंगी, इंटेग्रिटी की फीलिंग कैसे होंगी। वो लोग रिलीजन से ऊपर उठ जाएंगे और वो देश की तरक्की में लग जाएंगे। और वही रीजन है, आज वो सिंगापुर आप देख लीजिए, वहां पे भी फॉर मेन आफ्टर द एज ऑफ 18 सर्टन पीरियड ऑफ आर्म्ड सर्विस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो छोटे देश हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं कि हर कोई जाए, हमें अपने नंबर्स को लिमिट करना पड़ेगा। तो ये एक, मेरे को लगता है कि फ्यूचर के लिए अग्निपथ और जो अग्निवीर आएंगे वो आर्मी से बाहर आके भी देश की बहुत सेवा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन मोड तहत 10 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान, सर, दैट इज अ गुड इनिशिएटिव। और देखिए, आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली ग्लोबली और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई रेट पे है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट एक एस्टिमेटेड जो 17 से 25 साल की उम्र में रफली 18-19% है। रूरल एरियाज में थोड़ी कम है। बट पॉइंट इज कि एम्प्लॉयमेंट देने की ज़रूरत है, पर इसका सोल्यूशन सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं है। इसकी हम अभी तक सिर्फ हम ये बात करते हैं, सरकार की जिम्मेदारी तो है ही है, चाहे वो स्टेट की, हमारे पंजाब की सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबकी जिम्मेदारी है जॉब्स देना। जॉब्स के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना, मेरे को लगता है उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। आप कितने लोगों को सरकारी नौकरी दे दोगे? लेट्स से कि 10 लाख लोगों को जॉब अपने 1.5 साल में दे भी थी, क्या वो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को कवर कर देगा? आप सोचो कितनी पॉपुलेशन है और उसका 18% कितना बनता है। तो
गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी गवर्नमेंट के लिए होती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। ये है उसका एक साइड कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ला के आओ, आप बेस्ट ट्रेनिंग दो, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मिले, स्किल्स मिले बच्चों को। अब दूसरा आता है हमें एक अपनी सोसाइटी का कल्चर बदलने की ज़रूरत। आज एंडलेसली मैं जब कंपनी प्रमोटर्स या ओनर से बात करता हूँ, वो ये बात कर रहे हैं कि लोग भी जॉब करने को तैयार नहीं है, वो भी हार्डवर्क करने को तैयार नहीं है। अगेन मैं इसको जोड़ूंगा उस अग्निवीर जो निकल के आएंगे, जो अग्निपथ प्रोग्राम से निकल के आएंगे, वो मेहनत करना सीख जाएंगे, वो सिंसेरिटी से अपना काम करना सीख जाएंगे। वो सिचुएशन थोड़ी सी टफ होगी तो भागेंगे नहीं। तो मेरे को लगता है कि दोनों तरफ से अगर हम अपना एटीट्यूड भी चेंज करें और गवर्नमेंट सिर्फ सरकारी नौकरियां देने की बजाय थोड़ा सा ये भी फोकस करे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट्स, वो वाली स्कीम्स ही ज्यादा कारगर साबित होंगी। आप सबको सरकारी नौकर नहीं बना सकते, ये फैक्ट है, बट वी स्टिल वेलकम, इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। जहां जहां पे वैकेंसीज हैं, देखो गवर्नमेंट सर्विसेज अगर डिलीवर करनी है तो आपको गवर्नमेंट में एम्प्लॉय तो चाहिए। अगर वहां पे बंदा ही नहीं है तो वो पब्लिक को सर्व कैसे करेगा? तो जो भी वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, गवर्नमेंट ने उसको फिल करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और एनालाइज करें कि कितने लोगों की ऑप्टिमली जरूरत है, वो सारी वैकेंसीज को फिल किया जाए ताकि जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो आम लोगों को बेटर तरीके से मिले। जी, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, इंटरनेशनल अपडेट्स। Sir, court refuses to hold UK deportation for migrants. What do you have to say about the legality of this policy, and is it really inhuman as quoted by migrant group officials? I think it is absolutely inhuman. देखो, हम हमेशा से बात करते हैं जो वेस्टर्न जो मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे देयर पर्पस इज ओनली टू मेक मनी, टू हैव प्रेफरेंशियल एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑफ दिस ग्लोब। और वो काफ़ी देर तक प्रिटेंड करते रहे दे आर द कीपर्स ऑफ एवरीथिंग दैट इज प्रिंसिपल, ट्रू एंड वर्चुअस। बट एट द एंड ऑफ द डे यूके ने अपने ट्रू कलर दिखाई दिए। आप कॉस्ट कटिंग, मतलब आप जॉब्स आउटसोर्स करते थे, आज आपने जिनको जो असाइलम लेने आए हैं, इसका मतलब कि जिनकी आपने प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ली है कि एज अ सोसाइटी हम जो लोग अपने देश में प्रताड़ना सह रहे हैं, हम उनकी प्रोटेक्शन को भी आप आउटसोर्स कर रहे हो क्योंकि वो कम खर्चे पे। और आपको रवांडा जैसे देश में भेज रहे हो जहां पे खुद लॉ एंड ऑर्डर, सिविल लिबर्टीज, ह्यूमन राइट्स की इतनी बुरी सिचुएशन है, वहां पे एक बंदा जो पूरे अपना देश छोड़ के आया वो वहां पे अपनी लाइफ कैसे बनाएगा? अनफॉर्चुनेटली यूके ने उनके साथ $140 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया है क्योंकि ये सारा कुछ उनके देश में महंगा होता था, तो उन्होंने सस्ते में अपने प्रिंसिपल सस्ते में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आज उन्होंने इंसानों को एक कॉमोडिटी बना के रख दिया है कि अगर ये कम खर्चे पे मैनेज होते हैं तो इसको कम खर्चे पे मैनेज कर लो, क्योंकि वो जो एक वेस्टर्न माइंडसेट रहा है, जो एक वाइट सुपरमेसी का माइंडसेट रहा है, वो माइंडसेट यही रहा है कि बाकी सब लोग आर लेस ह्यूमन देन आवर्स। तो वो बड़े आराम से अपने माइंड को रैशनलाइज कर सकते हैं कि हम कॉस्ट कटिंग करके इनको यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे उनका फ्यूचर क्या होगा ये तो इमेजिन किया ही जा सकता है। सो दिस इज समथिंग विच यूके की प्राउड हिस्ट्री तो उनकी रही नहीं है। उनकी हिस्ट्री हैज़ बीन उनकी हिस्ट्री में पूरी दुनिया की एक्सप्लॉयटेशन, जो दुनिया में वर्स्ट अत्याचार हो सकते थे वो ब्रिटिश एम्पायर ने पूरी दुनिया पे किए हैं। हिंदुस्तान उसका गवाह है। उन्होंने लोगों का स्कीमेटिकली माइंड वॉश, उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और अपनी वैल्यूज़ को दूसरों के ऊपर दिखाने वाला जो रेसिस्ट माइंडसेट, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो उनमें रहा है, यही उनकी हिस्ट्री रही है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने अपनी प्राउड हिस्ट्री पे दाग लगा दिया है, क्योंकि उनकी हिस्ट्री में कुछ भी प्राउड करने वाली बात नहीं है। आज भी अगर उनकी कंट्री का जीडीपी पर कैपिटा हाई है तो उसका मेजर रीज़न यही है कि उन्होंने पूरी दुनिया की एक्सप्लॉयटेशन की थी, और आज भी उन्हीं असेट्स की वजह से दे आर डूइंग वेल। और आज जब उनकी जिम्मेदारी है, व्हेन दे हैव दे आर प्रिविलेज्ड, और हर प्रिविलेज कंट्री हो, लोग हो, उनकी जिम्मेदारी है दे शेयर देयर वेल्थ एंड फॉर्च्यून विद अदर्स। और आज जब उसका भी काम आया वो उससे भी पीछे हट रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इट्स अ वेरी शेमफुल डे। पर इससे एक अच्छी बात हो गई कि जो यूरोपियन जो दिखाना चाहते थे पूरी दुनिया को कि दे आर मोर प्रिंसिपल्ड, दे आर मॉरली सुपीरियर देन अदर्स, आज उस चीज़ की तो पोल खुल गई। आज वो किसी को ये तो नहीं बोल सकते। हमारे इंडिया के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो तो बोलते ही आए हैं। उन्होंने जयशंकर जी ने अभी थोड़े दिन पहले बोला था
कि यूरोप को ये गलत फहमी छोड़ देनी चाहिए कि जो उनकी प्रॉब्लम है वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। वो आती है उनके उस रेशियल माइंडसेट से, उस इंपीरियलिस्ट माइंडसेट से, जिसमें वो सबको अभी भी अपना टूल या रिसोर्स ही समझते हैं, और वो दूसरे किसी भी और कलर के इंसानों को, किसी भी और देश के इंसानों को अपना टूल और असेट ही समझते हैं। और मैं आपको रवांडा की हिस्ट्री थोड़ी सी बता दूं, जहां पे उनको भेजा जा रहा है जी। वहां पे भी कुछ दशक पहले तक वहां पे भी बेल्जियम की वो कॉलोनी थी। तो बेल्जियम ने वहां पे, जैसा कि अंग्रेजों ने इंडिया में किया, हिंदू मुस्लिम, फिर विद इन दोस हिंदू कम्युनिटीज को अलग अलग जातों में बांटने की कोशिश की, वहां पे भी उन्होंने पूरी पॉपुलेशन को दो आपस में बांटने की कोशिश की। और 1994 में उसके रिजल्ट के कारण जो बेल्जियम ने वहां पे किया, इतना बड़ा नरसंहार हुआ कि एक कम्युनिटी के पूरी 10% पॉपुलेशन को एक साल में मार दिया गया। 10 दिन के अंदर 10 लाख लोग मार दिए गए। इससे बड़ा जेनोसाइड दुनिया में नहीं हुआ, क्योंकि वो उनको कंट्रोल में और आपस में लड़ता छोड़ना चाहते थे। तो जहां पे और वहां पे अभी भी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, उसके बाद भी सिविल वॉर्स होती रहती हैं। उनके नेबरहुड में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वहां की सिविल वॉर भी चल रही है। तो मेरे को नहीं लगता है कि ये जो बेसिकली जो रेफ्यूजीज हैं जी, वो आग से निकल के खाई में जा रहे हैं या कढ़ाई में जा रहे हैं, ये मेरे को नहीं पता। सो बट इट इज़ अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सैड डे फॉर हम ये सोच रहे थे कि दुनिया ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन हो रही है, सबके राइट्स की इक्वालिटी आ रही है, पर एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल अबाउट मनी। तो ये एक यूके को, मेरे को लगता है कि पूरी दुनिया को ही यूके को इस चीज़ के लिए क्वेश्चन करना चाहिए। आखिरी सवाल सर, चाइना लिफ्ट्स 2-year कोविड वीजा बैन ऑन इंडियंस, तो कितनी बड़ी राहत है इंडियन प्रोफेशनल्स जो स्टक हैं 2 साल से चाइना में, उनके लिए? देखो, डेफिनेटली जिनका करियर डिपेंडेंट था, अब 2 साल से काफ़ी प्रोफेशनल जो कोरोना के टाइम पे यहाँ पे वापस आए थे, वो अपनी जॉब में नहीं जा पा रहे थे। सिमिलरली लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु वर स्टडीइंग मेडिसिन इन चाइना, दे वर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर कोर्स। देन लॉट ऑफ फैमिलीज हु वांटेड टू, जो इंडियंस वहाँ पे हैं और उनकी फैमिलीज उनको नहीं मिल पा रही थी। तो ये देखिए, एक ट्रॉमा होता है कि नॉट टू बी एबल टू परस्यू योर करियर, नॉट टू बी एबल टू बी विद योर लव्ड वंस, एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। और चाइना ने जो पॉलिसीज इसके लिए ली, दे वर वेरी इनह्यूमन पॉलिसी, चाहे वो उनकी अपनी पॉपुलेशन के लिए हो, चाहे फॉरेन पॉपुलेशन के लिए हो, दे वर नेवर कंसिडरेट, एंड डिस्पाइट दैट दे फेल्ड मिजरेबली इन कंट्रोलिंग कोरोना इन एनी वे। अभी भी उन्होंने ब्लैंकेट बैन फ्लाइट्स और टूरिज्म पे मतलब मूवमेंट पे लगा दिया फ्रॉम इंडिया स्पेसिफिकली। और उस टाइम पे इंडिया और चाइना का जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी चल रही थी, एंड इट वाज देयर वे ऑफ सेंडिंग अ मैसेज। तो चाइना इज ऑलवेज नोन टू यूज पीपल एज पॉन्स इन इट्स माइंड गेम, इन इट्स जियोपॉलिटिकल गेम्स, और यही चीज उन्होंने इंडियंस के साथ करने की। आपको शायद याद होगा कि उस टाइम पे कुछ इंडियन सेलर्स एक शिप पे स्टक थे, उन्होंने उनको लैंड नहीं करने दिया, उनको दवाइयां नहीं लेने दी, और वो लोग भूख और बीमारी से वहां पे तड़पते रहे। सो दैट इज द माइंडसेट ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट, एंड दे कैन डू इट टू देयर ओन पॉपुलेशन। अगर यूके ने पूरी दुनिया को एक्सप्लॉइट किया और कोलोनाइज किया, तो चाइना ने अपने लोगों को एक्सप्लॉइट किया। उनको काइंड ऑफ कंसंट्रेशन कैंप्स में, उनको छोटे छोटे बंकर बेड्स में, जहां पे वो मासेस में रहते थे, और फैक्ट्रीज में लो कॉस्ट पे अपनी प्रोडक्शन पावर बनाने के लिए, लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन करने के लिए उन्होंने गांव से लोगों को उठाया, शहरों में भेजा। आज डेफिनेटली आज कुछ लोग गरीबी से, वहां से काफी लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं, पर ये सारी चीजें हुई हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन के माइंडसेट के साथ। तो बेसिकली ये राहत तो है ही है हमारे जो स्टूडेंट्स जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे हैं, जो बल्कि इंडिया के लोग जो अपनी फैमिलीज को वहाँ मिलने जाना चाहते हैं, जो अपना काम परस्यू करना चाहते हैं, तो एक तरह से तो ये राहत है, एंड इट्स अ गुड स्टेप। एक मैसेज दे रहा है कि कोविड का जो प्रकोप है पूरी दुनिया पे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। So thank you so much for your views, sir. Stay connected for such deep and meaningful insights, and do not forget to subscribe to our channel and download our app. अपने सुझाव, अपने सजेशन जरूर दीजिए हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।